against I am you? I am very happy if filing a FIR against me can resolve the Assam Mizoram border dispute. I am extremely happy if police give me notice, I'll go and I'll join the But investigation. 6 police officials are also named, including the DC. I cannot talk about, I have to protect my officer. I'll not allow my officer to be arrested, or I'll not allow my officer to be taken away, or will not accept that notice. But if any notice is served to me, I'll go walking to Bhairangte. I'll start my Padajatra from Silchar and I'll reach Bhairangte. And I'll give my key, arrest me. If my arrest is going to resolve the dispute, why not arrest me today itself? So how is the situation right now? I think I was in touch with Mr. Joram Thanga last 3 days or 4 days, till 4 days back. He said that Himanta, I'll talk once my quarantine is over. So definitely if there is any issue, he will call me, because I call him not less than 18 to 20 times from 26th. On the day of 26th, probably I call him not less than 12 times. So Is the Assam government or the police going to file more FIRs? no, we do not have to file FIR anybody. But if somebody died, then the case need to be investigated. So what I have proposed, why Assam police need to investigate, why Mizoram police need to investigate, let it be investigated by either NIA or any central government agency, because some proof has to be there. If loss of life is there, their parents can also go and file a case that we need to know the truth. So victim family has every right to seek a closure. It is not about Assam and Mizoram. It is about 6 life. योगी जी ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी वहीवट क्षमता का, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का परिचय कराते हुए जो कोरोना प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग कोरोना मुक्त करने का काम, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहीं पर, सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यहीं पर, सबसे ज्यादा बेड का निर्माण यहीं पर हुआ। 1,80,000 कोविड बेड की उपलब्धता करी, 541 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है, 194 बन गए हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क दवाई किट देने का काम किया और निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत और उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिखा था, हर 2 जिले के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अखिलेश जी हमारी मखौल हो रहा है, कहां से बनाएंगे? अखिलेश जी अभी तो 4 साल हुए हैं, मैं हिसाब देता हूं आपको, आप 10 छोड़कर गए थे, 40 की व्यवस्था योगी जी ने कर दी है, हमारी वादा पूरा। पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। मुझे लगता है सोच बदलने का काम जब हुआ है
उसके साथ साथ बेटियों को जिस भी क्षेत्र में अवसर मिला, किसी भी क्षेत्र में, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर शानदार किया, चाहे वो भारतीय सेना हो, देश के अन्य क्षेत्र हों, सामाजिक क्षेत्र हों, और खेलों में भी बेटियों ने बाकियों से बेहतर ही किया है। ये अपने आप में प्रेरणादायक है और मुझे लगता है ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, ये अपने आप में मुहिम बहुत ज़बरदस्त चली है और बहुत सारी बेटियों के साथ साथ युवा पीढ़ी को एक बड़ी प्रेरणा पीवी सिंधु हो, मीराबाई चानू हो, लवलीना हो, इन सब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों की ओर से मिलती है। I shall thank Park, who has taken a great pain, and apart from that, the Government of India, the Badminton Association of India, OGQ, supporters, sponsors, everybody has, given her all the encouragement, and I'm very grateful to especially media people also, for giving her all the encouragement through their clippings that she will going to win the gold, though the pressure is there, but I'm happy that she has won a medal for the country, because generally what happens is playing third and fourth match is a very painful match. So yesterday I have motivated her a lot, and thank God, with the blessings of everyone, the entire nation, she has bought a medal, and I'm happy that she is the first woman to win 2 consecutive Olympic medals. No doubt it's a bronze and a silver, but continuously. So that's a record. Yeah. So that way at least she has bought some name and fame to the country. Yesterday I told her, you have given your best and no problem, but concentrate today and just think that you are giving me a gift and play on the court. So I'm very happy. Of course, everybody will cry. She had tears in her eyes, but good that she has recovered and come back, and she has won today. हमने तो उत्तर प्रदेश में जो विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया है, आगरा शहर में ही देख लीजिए, आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, एक नहीं बीसियों लाख मकान बना करके और 2-2 कमरे के मुफ्त में जो लोग झोपड़ी में रहते थे उनको देने का काम किया। ये जो लोग हैं, इनके नेता हैं, झोपड़ियों में जाते हैं दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए, ले अपना खाना जाते हैं। बहन मायावती जी का क्या है, वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ियों से निकाल करके और पक्के मकान में ले जाने का काम करती हैं। यही फर्क है। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि जरूर लड़ें ये लोग, तीनों लोग चुनाव, और चुनाव में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जो सुन रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। तभी तो इन लोगों को ये एहसास होगा कि आज जनता क्या कह रही है उनके बारे में। तो इनको चुनाव में आने दीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपकी पार्टी किसी और पार्टी से संबंध है क्या? हमारी पार्टी किसी के साथ मिल करके और चुनाव नहीं लड़ने जा रही। एक बार नहीं, कई बार हम लोग कह चुके हैं, हम लोग अगर किसी के साथ मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए तो इस प्रदेश की जनता है, उसके साथ में मिल करके और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले लड़ रहे हैं, अकेले दम पे सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे।
ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है, ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज करने के लिए कानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी ओबीसी बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है? क्या आपके ने रिकॉर्ड है, बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई, ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.